Good morning, good afternoon, good evening to everyone. I am Anurag and I welcome you to this new initiative that I have bought on YouTube channel for now. And for some reason, I call it as a revolution. So, welcome to you all. So, before I start, I want to say that this is more than a channel and this is your thought process revolution. For the reason I said it is a revolution. So, I just welcome to you. सो तैयारी सिर्फ सिलेबस की नहीं, सोचने की भी होनी चाहिए. दिस इज नॉट जस्ट अ प्रिपरेशन, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी दैट आई वुड बी डूइंग विथ यू. सो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू नीति कॉरिडोर आईएएस, a channel that is not made to teach you UPSC but to rebuild the way you think. मैंने शुरुआत में ही एक बात कहना चाहता हूँ आपसे. दिस इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म टू कंप्लीट जीएस और एथिक्स और एसे सिलेबस, ठीक है. तो ये एक माइंड लैब है. सो जहाँ आपको तैयारी कराएंगे सोचने के लिए, समझने के लिए और बदलने के लिए. For the reason I called it as a transformation. So this is like a revolution that I have thought of. It was my dream. So today I am with this introductory video of my initiative. I want you to introduce you that why I used Niti Corridor as the name. So Niti Corridor, so this is not a word, this is a vision. Okay, just like ये एक शब्द नहीं है, ये एक विजन है. विजन, इथिक्स, पॉलिसी, विजडम और इंडिया के सिविलाइजेशनल वैल्यू का संगम है ये. और कॉरिडोर, कॉरिडोर क्या होता है? इट्स जस्ट लाइक इन बिटवीन स्पेस. इन बिटवीन स्पेस का मतलब कि दो चीज को जोड़ने वाला जगह. सो यहाँ पर एक एस्पिरेंट एक थिंकर में बदलता है, यहाँ एक एस्पिरेंट एक ब्यूरोक्रेट में बदलता है और यहाँ एक एस्पिरेंट नेशन बिल्डर में बदलता है. सो दिस कांट बी कॉल्ड एज अ क्लासरूम एंड दिस इज योर इंटेलेक्चुअल लॉबी to the IS corridor. So this is the little meaning that you might have think, and it's like a corridor, the space, the inner space between what you want to become and what you are. And I want you to become a thinker, I want you to become a bureaucrat, and I want you to become nation builder. So take it as a intellectual lobby to the IS corridor. So I just already said you, this is not just a UPSC preparation, it is a thought revolution. It is a place where you can reflect, question, understand and transform yourself. So I want you to say that why I have started this channel. तो सुनिए, मैंने अपना पूरा जीवन एक दौर सिर्फ एक चीज के लिए जिया है, ठीक है, वो एकेडमिक्स और थॉट बिल्डिंग के लिए. From qualifying JEE Advanced to giving my everything to UPSC to meditating over India's challenges for years, I have lived the life of a student. I have lived the life of a seeker, a struggler. So इस सफ़र में एक बात समझ में आया, UPSC एस्पिरेंट कोई कंटेंट से नहीं निकलता, कंटेक्स्ट से निकलता है. सो इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी फैक्ट्स यू रिमेंबर, इट्स अबाउट हाउ डीपली यू थिंक एंड द थॉट प्रोसेस कम्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव and the dimensions you can scroll. So this channel is born from that understanding, because your thought process is that it becomes your real AIR. So this is what you achieve and you will achieve. So what you will get on this channel, आप सोच रहे होंगे कि ये तो चलो इंट्रोडक्शन है, ये हो क्या रहा है, what is this channel. ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया. इट्स जस्ट नॉट लाइक, दिस इज़ नॉट अ ज्ञान, इट्स अ लिव्ड एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ व्हाट आई विल बी यूजिंग अप टू. एंड इट्स अप टू यू दैट यू विल बी जस्ट watching me doing everything before you. So what makes this channel unique? So for that I want you to say that here you won't just learn what you study, okay, here you learn how to think like a civil servant. So for that you will be given the depth over data, perspective over PDF and thought process over tips and tricks. So this is something that you scroll every time near the exam times and everything, but I will be just focusing upon this thing because this might help you in prelims, but this is equally good for prelims, mains and interview. As per as the changing environment and the concerns that are growing related to the questions and pattern of UPSC nowadays, these things are basically the toolbox through which a aspirant can become a real bureaucrat, what he is aspiring for. So this is where ideas, not just information, are nurtured. So ideas nurturing, nourishment is something that I wish is
something achievable through this initiative. So it's just like a beyond coaching program and like a thinking companion. And also remember, I am not your tutor, I am a fellow seeker. And this is something that I think I should learn from all the great personalities that left this earth. And you will soon come to know why I am saying this, fellow seeker, because this is something that realization and true vision show you that you are not what you think you are. So together we will rebuild your approach from the roots up. So you know this. Okay, so what thing will be like, just let's take a small brief dive into this. So GS subject reimagined with the depth but with a twist. Okay, so it will not only like completion of the syllabus, we will uncover the philosophy, ethics, ideas behind it. We will go through this, because I have studied philosophies for more than 3 years till now, and ethics also. And as you know that ethics is a sub branch of a philosophy, it's one of the division where ethics comes part in it. And understanding will be more emphasized before memorization, as it is important psychologically. We see that this is important, but rationale and the philosophy is also something that help you memorize longer. So this is something that I will emphasize more upon. So this is something I talked about the GS subject. And now again for the ethics, integrity and philosophy, you see that ancient wisdom and modern relevance. This is something like the tradition, and this is something like the way you feed everything with changing time, the pattern that is been asked and everything. So we will explore the minds of Gandhi, Gita, Kant, Buddha, Kautilya, not as history but as a tool of thought. So I will help you identify their philosophy in everyday example. Whenever you will hold the Hindu, the Indian Express, everything, in every article, editorial, you will be able to see the things that have been the philosophy, the guiding philosophy of the great personalities here lived by. So this is something that we can do, build out of it. And this is also help us gain, philosophy and ethics are not more different, as ethics is the sub branch of philosophy. So what you have already have gone through the syllabus of ethics, then you have seen the in the topic 5 there is a mentioning of uh, great thinkers throughout the world. In this we can learn about them. So this is something that ethics, and you have already know drishti and divya drishti, so that divya will be added through what deeper perspective vision that you can grow here. The ideas are nurtured, not memorization. So concepts clarity with context, in interdisciplinary linkages from GS1 to GS4 with real life example instances, and Indian philosophical thought that will be helping you in GS2 and GS4. So यहाँ पर समझ मिलेगा। सिलेबस तो हर जगह मिलता है, 10-15 रुपए में भी मिल जाता है। ये वही तैयारी है जो आंसर लिखने की मशीन नहीं, सोचने वाला ऑफिसर बनाएगा आपको। सो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है। और यहाँ पर ये केस स्टडीज़ का बात कर लेते हैं। तो केस स्टडीज़ सिर्फ लिखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होगा, क्योंकि I am just talking about you to pass this corridor and become what I have just already said, the bureaucrat, the nation builder, the thinker. So for becoming a nation builder, you not only have to become a civil servant, there is more to it. You have to you must have gone through newspapers and current news that many of the civil servant as aspirant who have turned into IAS officers have been caught taking bribes and all. So they have been through this syllabus, this journey, everything. But the corridor, they means, this is an aspirant, and this aspirant has got some aspirations for the becoming an IAS, for example. So the path he takes will be similar, but the depth of clarity will also not help only in passing the examination, but also in the way how he can serve the nation. So GS4 subject was introduced in 2023 in order to inculcate the civil servants with the bare minimum ethical qualities, foundational values. But these something they do what
they do they just ratification of the syllabus and everything they wrote down and they write in the examination, but they don't qualify as an civil servant, as a nation builder. So for nation builder you have to see यार थोड़ा सा तो डेप्थ देखना पड़ेगा आपको. So यहाँ पर सोशियोलॉजी और इंडियन सोसाइटी एंड हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक बात और मैं बताऊँगा कि यहाँ पर जब वैल्यूज़ आपके प्रिपरेशन को ड्राइव करेगी ना, तो आंसर नेचुरली फ्लो होगा, नॉट बिकॉज कि आप उस चीज़ को ज़्यादा समय देकर रट रहे हो इसलिए. सो थोड़ा सा आपका वैल्यूज़ भी मैटर करता है, एंड वो वैल्यूज़ मैं आपको इन चीज़ों के थ्रू इनकलकेट करूँगा, दैट हाउ यू वुड be an person who thinks for nation building. I know many of you think कि आप क्या बता रहे हो, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है उतना आईएएस का एग्ज़ाम निकालने के लिए, बट यू नो आईएएस का एग्ज़ाम भी किसके लिए है, हमारे देश के लिए ही तो है. सो टेकिंग केयर ऑफ दिस, we should not degrade the sanctity of this examination, the post that we are getting. So for that this is also important. आप full fledged तैयारी करो ना यार, मतलब बन रहे हैं तो ऐसा बने कि देश भी तुम्हें याद रखे कि हाँ कोई तो आईएएस ऐसा आया था, क्योंकि सब आईएएस से ये उम्मीद करना चाहिए. बट आज के टाइम पे चीज़ें, आई नो पॉलिटिक्स एंड ब्यूरोक्रेसी आर समथिंग दैट इज़ टू डिफरेंट पोल्स, बट यू नो pragmatism is something that will be also taught. मैं वो भी आपको बताऊंगा एवरीथिंग. एंड हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू आर गोइंग टू लिव इन इंडियन सोसाइटी. सो इंडियन सोसाइटी का सिलेबस तो सबको पता होगा भाई. इंडियन सोसाइटी के अंदर सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, आपको पता है. उसके अंदर आपको इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस के अंदर आपको बहुत सारे वल्नरेबल सेक्शंस के बारे में बात करते हैं. आप एक साइकिल से जाओ, रिक्शा से जाओ, कार से जाओ, आप जब रोड पे जाओगे ना तो आपको वो हर चीज़ आइडेंटिफाई हो जाएगी जो आप एक आईएएस और एसजे में पढ़ते हो, मतलब इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस में पढ़ते हो. सो दिस इज़ समथिंग, आपको ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो सिलेबस के अंदर चीज़ें हैं वो आपको मार्केट के अंदर खोजना है, वो आपको रियलिटी में खोजना है. तो आप बोलोगे कि रूम में बैठ के कैसे खोजें, रूम में नहीं, यही तो बात है. वो जो दिव्य दृष्टि का मैं बात कर रहा हूँ ना, वो जो दृष्टि का बात कर रहा हूँ, वो मैं नीति का बात कर रहा हूँ, जो आपकी GS2 के गवर्नेंस में यूज़ करोगे. वो दर्द पढ़ना होगा ना आपको, वो दर्द जानोगे तब तो उसका मलहम लगाओगे, मलहम खोजोगे, मलहम इन्वेंट करोगे. जो जितना अच्छे से मलहम इन्वेंट किया उसका इंटरव्यू भी अच्छा निकलेगा, और वो लाइफ में अगर सच में उसको इम्प्लीमेंट किया तो वो एक अच्छा आईएएस ऑफिसर बनेगा, और उसको भी एक दिन एथिक्स के केस स्टडीज़ में कोट किया जाएगा. सो दिस इज़ समथिंग कि ये आप अपने लाइफ में विन कर रहे हो. दिस इज़ नॉट अबाउट कि आप आईएएस बन रहे हो, आईएएस से भी 10 गुना ऊपर जाकर काम कर रहे हो. क्यों? क्योंकि आईएएस बनना इज़ लाइक पासिंग एन एग्ज़ाम, बट आप एक नेशन बिल्डिंग तब कर पाओगे जब आप एक सरकमस्टांस को पास करोगे, जब आप एक सिचुएशन को पास करोगे जो कि आपको सारे इथिकल वैल्यूज़, लॉयल्टी एंड एवरी फाउंडेशन वैल्यूज़ वुड बी टेस्टेड. ओके, सो उस दिन देयर विल बी टेस्टिमनी कि हाँ ये इंसान, ये बंदा सच में आईएएस के लायक था. सो आप ये सारी चीज़ें मे बी आई माइट बी इनफॉर्मल समटाइम्स, बट यू माइट बी ओके विद इट, एंड आप ये चीज़ फील कर सकते हो. ठीक है, आपको इंडिया की इनविजिबल स्ट्रक्चर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और उसके बारे में सोचना गलत नहीं है. आप बोलेंगे ये फिलॉसफी का, ये ऑप्शनल का सब्जेक्ट है. नो, इट्स नॉट एन ऑप्शनल. ये तो जीएस है, ये आपको लग रहा होगा ऑप्शनल है, बट इट इज़ नॉट एन ऑप्शनल. इट इज़ समथिंग अ बिगर हेड ऑफ दिस इंडियन सोसाइटी. ओके, सो इसमें आप कास्ट, क्लास, जेंडर, पोवर्टी, अर्बनाइजेशन, ये सब जीएस के टॉपिक्स नहीं हैं. लेट मी क्लियर यू, ये इंडिया के ट्रुथ हैं, और आप जब तक उन्हें महसूस नहीं करेंगे ना, आप उन्हें लिख नहीं सकते. सो आईएएस ऑफिसर्स आर नॉट मेड इन लवसना. सो फर्स्ट यू हैव टू क्लियर दिस myth. IAS officers are not made in Lavasna. They are born when a student starts seeing the society differently. And for that, I will give you that vision. I will give you that niti. And you will get this niti in this corridor. So welcome to this. And I hope you would love it. So for current affairs, it will be analytical and applied. समाचार से समझ तक का सफ़र होगा इसमें. And you know how to decode the news and map it to mains, prelims, essay, everything. एडिटोरियल्स को सिर्फ पढ़ना नहीं, उनसे थॉट प्रोसेस बिल्ड करना सीखेंगे, मिल के सीखेंगे, सब करेंगे. एज आई हैव ऑल्सो सेड, आई एम अ फेलो सीकर
and this is something that you will identify soon. So आंसर राइटिंग एंड ऐसे क्राफ्ट कैसे होगा? फॉर दिस फ्लो स्ट्रक्चर, कीवर्ड का बैलेंस बनाना, पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड फिलोसफिकल हुक होना. सो यहाँ पर आपको जो पर्सनल रिफ्लेक्शन का बात हो रहा है ना, ये आपके अंदर जो वैल्यूज़ होंगे ना उनको इनकलकेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब एसे और जीएस के अंदर, GS4 के अंदर और एसे के अंदर आपके अंदर का जो भी चीज़ है ना वो बाहर आएंगी, और वो जब तक नहीं बनेगा, उसके अंदर जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, यू कांट बी देयर writing examination with full flow, natural flow, which can fetch you the marks that is bare minimum for you to qualify UPSC mains cutoff. Okay, so personal reflection का भी जरूरत है. उसको कैसे आप ग्रो करोगे भाई? आप तो सिलेबस रट्टाफिकेशन कर लोगे, टेलीग्राम इधर उधर सब कर लोगे, बट फॉर द पर्सनल रिफ्लेक्शन यू वुड बी नीडिंग दैट. एंड फिलोसफिकल हुक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. यू कैन सी द चेंजिंग ट्रेंड. आप ऐसे के अंदर जो बदलती हुई जो टॉपिक्स आ रही हैं, जिसमें आपको बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल बैकग्राउंड दिख रहा है, उसके बारे में भी आपको जानना होगा. एंड एनालिटिकल कंक्लूजन तो ऑफकोर्स चाहिए. सो यूपीएससी को पेपर से इंप्रेस नहीं करना है, थॉट से कन्विंस करना है. ये आपका मूल मंत्र होना चाहिए. एंड I always have emphasized, not on this channel because this is my first video, so strategy and study psychology भी बहुत important है. यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पर्सनलाइज्ड अप्रोच, हर एस्पिरेंट एक जैसा नहीं होता है. सो दिस इज समथिंग, ये 12 घंटे वाला प्लान, रिवीजन साइकिल, प्रीलिम्स, बर्नआउट, इंटरव्यू एंजाइटी, सब प्रैक्टिकल एडवाइस के साथ मैं दूंगा. कोई कोचिंग ड्रामा नहीं है, इट्स जस्ट रियल टॉक. सो आई एम जस्ट कम्युनिकेटिंग विथ यू with a real me. Okay, so real me. So UPSC needs thought leaders. Okay, so be the officer who understand the nation, not just govern it. And this channel will train your vision, not just your memory. So this vision that I am always emphasizing, and also I have just said कि ये जो नीति है, this is not a word, it's a drishti, and drishti is something can be translated into vision, you know. So यूनिक डायमेंशन है इस चैनल का, जो कि मैं आपको बताऊंगा. दिस इज अ थिंकिंग मेंटरशिप. I will write here. This is a thinking mentorship. This is a thinking mentorship, not just an academic service. So ये academic service नहीं है, ये thinking mentorship है. और यहाँ पर हम लोग realities का बात करेंगे, loneliness का बात करेंगे, failure का बात करेंगे, burnout का बात करेंगे, distraction का बात करेंगे, and how to still rise यार. मतलब वो सारी चीज़ें ना, resilience, जो resilience का बात होता है ना, वो resilience gain करेंगे. And here you will learn how to build a standpoint in essay, integrate philosophy into ethics and empathy to answer, कैसे ऐड करें, and write like a statesman and not like a student, because अब तो bare minimum आप स्टूडेंट जैसा भी लिखते हो ना, then you will be getting 4 out of 10 and 6 out of 15, something like that. And more importantly, एग्जाम प्रूफ थिंकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस का डायरेक्शन जब तक नहीं पता रहेगा, इट इज़ जस्ट लाइक अ माइंड दैट वर्क्स इवन अंडर प्रेशर, वैसा एग्जाम प्रूफ थिंकिंग लाना होगा. वो तब होगा ना जब आप उसके लिए लेवल का प्रैक्टिस करोगे. सो ये जैसे आप यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो में, तो दिस इज समथिंग लाइक अ डीपर मिशन दैट हेल्प क्रिएट ऑफिसर्स हु डोंट जस्ट क्लियर एग्जाम्स बट कैन कैरी द इथिकल एंड इंटेलेक्चुअल वेट ऑफ पब्लिक लाइफ. सो ये समथिंग बहुत, ये डीप लाइन है, आप इसे पढ़ो तो जानोगे. टू हेल्प क्रिएट ऑफिसर्स हु डोंट जस्ट क्लियर एग्जाम्स बट कैन कैरी द इथिकल एंड इंटेलेक्चुअल वेट ऑफ पब्लिक लाइफ. ये बड़ा ही मस्त है. ये चीज़ आप फील करो, बहुत अच्छा लगेगा. एंड यू विल बी थिंकिंग कि वाई यू शुड trust this voice. So this voice is me, Anurag, and I will be not giving you my whole thing today. My work will define, but मैं ये बता दूँ, I am not just a teacher, and what is amended will be means जो भी हम हैं ना, वो आपको मेरे वर्क से पता चल जाएगा. So don't worry. And this is the main characters which will be foundations for my vision and Niti corridor. That will be me, Anurag, you, and the Niti corridor IS itself, and the commitment. And this is something that I have left back, and because it will be filled by you all ना, ये आप लोग भरोगे. So here I am not to show off but to give back. Okay, so I have tested isolation, I have tested burnout, clarity, courage, and I know you don't need more PDF, you need better perspective. So for that I am here. My vision for you is to
आई वॉन्ट दिस टू बिकम योर थिंकिंग स्पेस। हम कुछ नहीं चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि ये जो नीति कॉरिडोर आईएएस है ये आपके लिए एक थिंकिंग स्पेस बने जहाँ कन्फ्यूज़न सॉल्व हो, ये एक क्वाइट मेंटर बने, ठीक है, जो जब आपको कोई गाइड नहीं मिले तो यही एक मेंटर है, ठीक है, मेंटल डिटॉक्स जोन बने, जब दुनिया डिस्ट्रैक्ट करे ना तो यहाँ पर आपको आकर एक पीस मिलेगा, एक इंटीग्रिटी मिलेगा थॉट का, एक आंसर लैब मिले जहाँ आप थॉट पॉलिश कर सकते हो। ये चैनल उन एस्पिरेंट के लिए है जो सिर्फ सिलेक्शन नहीं सिविलाइजेशनल इम्पैक्ट चाहते हैं। सो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये चैनल सिविलाइजेशनल इम्पैक्ट देने वाले थॉट प्रोसेस को जन्म करने वाले बच्चों के लिए है। यहाँ सिलेबस नहीं, समझ चाहते हैं और सिर्फ रैंक नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए है। कौन, मैं फिर से बता दूं, दिस इज अ channel not for the aspirant and for the selection only, this is for the civilizational impact। वैसे बच्चे जो civilizational impact चाहते हैं, जो सिलेबस नहीं समझ भी चाहते हैं, जो रैंक नहीं सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चाहते हैं, दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट, कि आप कॉरिडोर को क्रॉस करके कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे वो चीज़ के बारे में बात करते हैं। और वहाँ पर जाने के लिए सिर्फ पढ़ाई, रट्टाफिकेशन, एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें तो आप देख लिए हैं, दस हैव बिकम अ नीश एंड वी आर नॉट गोइंग फॉर दिस। सो यहाँ पर फाइनल वर्ड के साथ बोलते हैं, लेट्स बिगिन अ मूवमेंट। यूपीएससी सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक भारतीय चिंतक का, मतलब भारतीय चिंतक के जन्म की प्रक्रिया है। सो आप ये चीज़ याद रखिएगा। सो यहाँ पर से ही आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जो कि भारत के अंदर जो इशूज़ हैं, जो डायलेमा है, जो एवरीथिंग एवरी डे प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस के साथ जो भी आप आ सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, वो सारे चीज़ का ये चिंतन कर सकते हैं, वो सारे चीज़ का ये प्रक्रिया है। सो लेट्स टुगेदर रिबिल्ड दैट ओल्ड स्कूल इंडियन थिंकिंग वेयर प्रिपरेशन वाज पुरुषार्थ, वेयर स्ट्रेटजी वाज साधना एंड द सक्सेस वाज सेवा। एंड ये सेवा देश का सेवा होगा। एंड फॉर दिस लेट्स वॉक दिस जर्नी टुगेदर। आप मेरे साथ चलो। आई हैव गिवन ईयर्स ऑफ माई लाइफ टू दिस पाथ एंड आई एम वॉकिंग इट विथ यू, गाइडिंग, लर्निंग एंड ग्रोइंग टुगेदर। सो एट लास्ट आई वुड बी सेइंग कि मेरे चैनल के को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली आईआर इकोनॉमिक्स के साथ चीज़ें स्टार्ट होंगी। एंड आप कंटेंट देखना, आप कंटेंट देखना, उसके बाद आप डिसाइड करना क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। आप उस क्वालिटी को देखना, एनालाइज करना, क्या उस तरीके से क्या चीज़ों को आपको अभी तक मिली थी या नहीं मिली थी, क्या मिली थी, आप एक बार एनालाइज करना, ठीक है। सो पहले तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट करना होगा, अपना डाउट शेयर करो, जो भी क्वेश्चन है शेयर करो, एंड लेट्स टर्न दिस इनटू अ रियल इकोसिस्टम ऑफ थॉटफुल वॉरियर्स। वेलकम टू नीति कॉरिडोर IAS, योर लॉबी टू IAS कॉरिडोर। सो ये जर्नी शुरू होता है एंड आई होप आप पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने से पहले आप पहले तो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, उसके बाद लाइक एंड शेयर कर लेना। लाइक तो ऑफ कोर्स तब करोगे जब चीज़ें आएंगी, बट हाँ जल्द आने वाली हैं। द सेटअप हैज़ बीन रेडी। आपने एक शॉट देखा होगा, वो सेटअप रेडी हो गया है एंड होपफुली मेरा टीम, जो कि आपको सब समय के साथ पता चलेगा, वो टीम भी मेरा रेडी है। एवरीथिंग इज़ रेडी एंड नाउ आई वॉन्ट यू to subscribe to my channel and be a committed student for, you know, passing this corridor. This corridor is not only filled with the preparation, this is also filled with the real life trauma that you as a students seems like many students commit different types of mistakes because of this examination peer pressure. We will talk about this. हम हर तरीके से बात करेंगे। आज के टाइम पे बहुत लोग इस एग्जामिनेशन के प्रेशर से अपने रास्ते भटक रहे हैं ना, एवरीथिंग। आई हैव ऑल्सो बिन दैट इन दैट फेज ना, तो मैंने उन चीज़ों को बहुत करीब से देखा है। एंड इवन मेनी टाइम्स कम्स व्हेन आपकी कोई गलती नहीं होती है एंड फिर भी द थिंग्स गेट टच टू यू। सो ये चीज़ें इनफॉर्मली तो शुरुआत हो रही है, बट वन डे दिस विल बी समथिंग लाइक अ बिग रिवोल्यूशन। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अगेन क्लिक बेट कि हाँ रिवोल्यूशन हो रहा है, नथिंग। आप देखो, चुपचाप आओ, देखो, इस चीज़ को एंजॉय करो एंड अपना इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो करो। एंड मेरा ये दावा है, आप मेरा कंटेंट देखोगे, आप मेरे वो लेक्चर्स देखोगे, देन यू विल श्योरली गेन मेनी अ थिंग्स। ओके, सो मैं अपना मेल, अपना आईडी, एवरीथिंग आपको जल्द ही शेयर करूँगा। और वो इसी इसी इसी
वीडियो में रहेगा लास्ट में, तो आप आराम से उस चीज़ को देखकर शेयर करो, कमेंट करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर चीज़ का जानकारी रहेगा. एंड आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन दिस इनिशिएटिव. आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग, बट एज एन एडवाइस, एज अ फेलो मेंटर, I am just going to give this. Bye.